हेलो एवरीवन, दिस इज स्तुति। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखें क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। सो गाइस, इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. First of all, we have to know about that what is life process. Life process are those the basic functions performed by living organisms to maintain their life ऑन दिस अर्थ. मीन्स जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो मेंटेन करते हैं हमारी लाइफ को, जो हम डेली यूज़ करते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, मेंटेन देयर लाइफ आर known as life process. Okay, so let's start from the nutrition. There are many types of life process that are nutrition, respiration, transport and excretion, control and coordination, growth, movement and reproduction. Okay, so first of all we have to study about nutrition, that what is nutrition and what are the, we have to define that what is nutrition, and it's your notes also. Nutritions, all biochemical which take place in the body of living means जो हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे अगर आप खाना खाते हो तो वी ईट फ्रॉम माउथ ना, तब जाके हमारे वो लंग्स पर जाता है और डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करता है. जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो हम डेली लाइफ में जो परफॉर्म करते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं. इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द लाइफ प्रोसेस. For example, nutrition, respiration, transportation, excretion. These are some basic types of nutritions, respiration, transportations that I have taught you. Nutrition, the process by which taking of nutrients in our food. मीन जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइप को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं. दिस इज़ द ईजी लैंग्वेज दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्म ऑफ फूड. जो प्रोसेस होता है हम जो खाना लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे हम क्या कह सकते हैं बेटा? न्यूट्रिशंस. Nutritions are essential components of food which required for growth and development of the body. ये एक essential as you know that nutrition is mainly involved as everyone say that nutrition हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है for growth and life survival. मीन्स फॉर ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट, हमारे ग्रोथ में जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने फूड में जो रहता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन. फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, विद फैट्स, विटामिन. ओके, अब आ जाते हैं हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. Okay, that are concerned in our board exams, in your board exams. First of all, autotrophic nutrition we have to discuss here. Autotrophic nutrition क्या है? Type of nutrition in which organism make their own food by the process of photosynthesis. मीन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से तैयार कर लेते हैं, जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम इट्स ओन, उसे हम क्या कह सकते हैं? Autotrophic nutrition. It is a easy language of easy definition of autotrophic nutrition. You have to learn it. Type of nutrition in which organism make their own food by the process of photosynthesis. Okay, these are known as autotrophic nutrition. Or an organism are called autotrophs. We have to call the autotrophic nutrition as autotrophs also. For example, green plants and autotrophs make their own food by the process of photosynthesis that I have taught you. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. व्हाट डज यू मीन बाय हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? वो होते हैं, these are the types of nutrition in which organism cannot make their own food from its own and take nutrients from the other organism. जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं for nutrients for other organism. Here you have see. These are also known as heterotrophs, just like animals. Animals are dependent on the other organism for their food, means they do shelter, after that they get the food. Okay, so here our this session is completed nutrition. Okay, let's come to photosynthesis. Photosynthesis क्या होती है? फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं बाय विच ग्रीन प्लांट टेक CO2 एंड वाटर फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फोटोसिंथेसिस वो होते हैं जहाँ पर ग्रीन प्लांट होते हैं वो CO2 ले लेते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट.
बाहर की इन्वायरमेंट से. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, दे मेक देयर ओन फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन एंड रिलीज बाय प्रोडक्ट. मीन्स इसका मतलब क्या हो जाता है आपका जो ग्रीन फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस दैट द ग्रीन प्लांट टेक्स CO2 एंड वाटर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से लेते हैं और मेक देयर ओन फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अपना खुद खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट से. और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बायो प्रोडक्ट मतलब रिलीज़ करते हैं बायो प्रोडक्ट्स को. इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6CO2 + H2O, C6H12O6, 6CO2. You have to learn that formula, it's most important. 6CO2, 6 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 6 वाटर मिलकर क्या हो गया, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2. ओके, here our nutrition and photosynthesis. I hope you understand. So students, here you see that autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या होता है, एक और डेफिनेशन. टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना वो बनाते हैं खाने, फूड. इसको हम ऑटोट्रॉपिक भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स विच आई हैव टॉट यू. लेट्स कम टू फोटोसिंथेसिस. एक और डेफिनेशन जो कि मैंने पढ़ा चुकी थी ये वाली. सो गाइस ये देखिए, सही है, आपको होप समझ में आया होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस. इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस होता है, जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रीयूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, और ऑक्सीडाइज किससे होता है, वो ऑक्सीजन से, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन. Sunlight is used as energy source, whereas chlorophyll is trapping the sunlight in the process of photosynthesis. Sunlight क्या होता है, used as energy resource. पूछ लिया कभी, which is used as energy resource. Sunlight, where chlorophyll is used for trapping the sunlight by the process of photosynthesis. ट्रैप करता है sunlight को, अपनी तरफ खींचता है, तो by the process of photosynthesis. Okay, so come to next page. नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन क्या होता है एनिमल्स में. एनिमल्स आर द ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स. ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स से लेते हैं. ऑल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हार्बीवोरस, ओमनिवोरस एंड कार्निवोरस. सो गाइस, यू आर स्टडीइंग दीज 3 food habits, these 3 groups from the your previous classes from 3rd. Okay, so you have to understand this. First, herbivores, those animals which eat plants, mean जैसे plant खाते हैं, जैसे cow, buffalo, goat, these are all herbivores. Carnivorous क्या हो जाते हैं, some animals that eat only other animals, जो दूसरे animals को खाते हैं, do not eat plants for at all. प्लांट्स नहीं खाते, सिर्फ जैसे लॉयन टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, ये सब सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाते हैं. जो ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो सारे प्लांट्स एनिमल्स को दोनों खाते हैं, उसे ओमनिवोर. जस्ट लाइक मैन इज़ यूज टू ईट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बोथ, मीन्स द मैन इज़ अ ओमनिवोरस. डॉग एंड क्रोज, स्पैरोज एंड दीज. ओके, दिस इज़ वेरी ईजी. पार्ट 4 है होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन इन विच अ सॉलिड फूड मटेरियल इनटेक बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. मीन जो सॉलिड फूड मटेरियल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाता है, जस्ट लाइक चपाती, पर्ल्स, राइस, दीज आर ऑल सॉलिड फूड मटेरियल्स दैट आर इनटेक बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. And the 5 steps involved in the holozoic nutrition. It was the digestion, absorption, assimilation and addition. These are all some 5 types. Ingestion क्या होता है, the process of taking food into the body. means जब खाना अपने अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, ingestion. डाइजेशन क्या होता है, the process by which food containing large insoluble molecule. means जब फूड मॉलिक्यूल होता है वो लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल में ब्रोक हो. जब खाना हमारे पेट के अंदर जाता है तो वो छोटे छोटे पीस में ब्रोक आउट हो जाता है, तब जाके वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट आउट होता है. एब्जॉर्प्शंस क्या होते हैं,
द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द ब्लड स्ट्रीम मीन्स जब जो डाइजेस्टेड फूड रहता है वो हमारे जहाँ से हमारा खाना पास आउट होता है वहाँ तक चला जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। मीन्स हमारा खाना डाइजेस्ट हो। और जैसे एजिमिलेशन क्या होता है, जब एब्जॉर्ब फूड इज़ टेकन बाय बॉडी सेल्स, जो एब्जॉर्ब जो हमारा पचा हुआ खाना रहता है वो बॉडी सेल्स लेते हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, फॉर रिपेयर डाटा, फॉर इंक्रीजिंग ऑफ द ब्लड। जब खाना खाते हैं तो उसके बाद एजिमिलेट होता है हमारा खाना, जो हमें एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है, ग्रोथ, रिपेयर, इन सब के लिए एजिमिलेशन का हम यूज़ आउट करते हैं। इजेशन क्या होता है? इजेशन प्रोसेस इन द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जस्ट लाइक व्हेन द फूड इज़ एब्जॉर्ब गेट अनडाइजेस्ट, मीन्स हमारा खाना पच नहीं पाता है अच्छे से, अनडाइजेस्ट हो जाता है, तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? इजेशन। ओके, so guys, our next topic is nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba is a lives in water. It is a small unicellular animal. Okay, as you study about the amoeba in class 9th. So holozoic nutrition is a process of nutrition in which the organism take solid or liquid food inside the body. holozoic nutrition अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो हमारा जो सॉलिड फूड और लिक्विड जो होता है वो हमारी बॉडी के इनसाइड ले लेता है। holozoic न्यूट्रिशन अमीबा में, वो तो हमारा ह्यूमन बींग्स हो गया holozoic न्यूट्रिशन। अब हमारा holozoic न्यूट्रिशन किस में हो पाएगा? अमीबा में। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। इंजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेक, अमीबा की बात हम कर रहे हैं। अमीबा में इंजेक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी सेल आइदर बाय swallowing और absorbing it. Amoeba push it out the pseudopodia to encircle the food and engulfs it, forming a food vacuole. This process is called phagocytosis. मीन्स इंजेक्शन होता क्या है? मीन्स जो प्रोसेस हमारा फूड अंदर जाता है हमारी बॉडी के, वो बिन एब्जॉर्ब किए जब अमीबा उसे पुश कर देता है सूडोपोडिया की तरफ। ओके, तो जो इन सर्कल फूड हमारे जो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं और उसे हम इंजेक्शन का भी नाम दे सकते हैं। मीन्स सूडोपोडिया क्या होता है? द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द अमीबा। ओके, सो इसकी डेफिनेशन है, इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी। मीन्स फूड को बॉडी के अंदर लेता है आइदर बाय swallowing और absorbing, या तो च्यू करके लेता है या फिर एब्जॉर्ब करके लेता है। अमीबा उसको कहाँ पुश कर देता है? सूडोपोडिया की तरफ। तो इनसर्कल द फूड, इंगल्स इट, जो हमारे जो फूड वैक्यूल्स के अंदर वो इंगल्स हो जाता है, रह जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? फेगोसाइटोसिस। सो our next topic is digestion. Digestion is the process of breaking insoluble and large food molecule into soluble and minute molecule. मीन्स डाइजेशन क्या होता है? जो हमारे कड़ा चीज़, मतलब सॉलिड चीज़ हम जो खाते हैं, जो डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। In amoeba, the food vacuole are transported deeper into cell and with the help of digestive enzymes. Food vacuole transport करता है deeper in the cell, मतलब एकदम गहराई में, and with the help of किसके help से? digestive enzymes में, amoeba में। तो लार्ज insoluble particle broken into simplest molecule, जो लार्ज बड़े सॉलिड फूड्स होते हैं वो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाते हैं? डिवाइडेड अप हो जाते हैं। Now let's come to absorption. In the process of absorption, the nutrients from the digested food material are absorbed into cell cytoplasm by leaving behind undigested particles. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड, जो न्यूट्रिशन हमारे डाइजेस्टेड फूड से निकलता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको छोड़कर वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? डिफ्यूजन। द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। जो हमारा एक्सेस फूड, मतलब जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। कम टू द एजिमिलेशन। एजिमिलेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल। मीन जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा एब्जॉर्ब फूड मटेरियल के अंदर से वो एनर्जी
लेता है। इन अमीबा एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल आर यूटिलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, प्रोड्यूस करता है हमारी एनर्जी हमारे खाने के अंदर से जो निकलती है, एंड रिक्वायर्ड टू कैरी अ डिफरेंट लाइफ प्रोसेस विद इन द सेल। मीन्स फिर हमें उसी के हिसाब से वो काम करने में हमारी जो है क्या करता है, हेल्प करता है। एजेशन क्या होता है? एजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। मीन्स एक्सक्रीशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स जो हमारा खाना अनडाइजेस्ट होता है उसे एग्जिट कर देता है। इन अमीबा दिस प्रोसेस इज कैरिड बाय रिपर्चिंग द सेल मेम्ब्रेन टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इसी को कहते हैं हम एजेशन। मीन्स जो प्रोसेस हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, आपका एजेशन। सो आई होप कि आपको ये अमीबा का न्यूट्रिशन इन अमीबा आई होप समझ में आया हो कि आपको जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आप सबको समझ में आया होगा। मीन्स हमने पहले डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, फिर फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हार्बिवोरस, दीज आर ऑल, एंड होलोजिक न्यूट्रिशन एंड इन अमीबा और इन वो ह्यूमंस में। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम होलोजिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस लाएंगे। ओके, सो गाइज अभी आज तक की मेरी वीडियो बस यहीं तक है। ओके, आई होप कि आपको जो मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट फर्स्ट है वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट फर्स्ट वीडियो दैट आई वाज एक्सप्लेन हियर, you should understand. Okay, and if you have any problem then please ask me in comment. Okay, and these are all notes that you should wrote in your copy also. And thank you for watching. Hopefully आपको समझ में आया होगा। Bye bye, take care, thank you for watching my video. Bye bye.